Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In the previous lecture, we have studied international trade and balance of payment. In this lecture, we will study foreign direct investment and role of foreign capital and multinational companies. So let's start the topic with foreign investment. See, investment made by foreign residents or foreign companies, both these, right? Residents and companies, right? So investment done by foreign residents and companies in India, also investment done by Indian residents and Indian companies in other countries of the world is known as foreign investment. See, on the basis of the direction of flow of investment, it is of two types. The first is incoming investment and second thing is that outgoing investment. So depending on direction, the foreign investment is of two types, incoming and outgoing. What is incoming? See, incoming जो investment होता है, see if foreign residents, right? See, if foreign residents or foreign companies invest in India, this is known as incoming foreign investment. For an example, Pepsi, which is a foreign company, Pepsi invest in India, then it would be known as incoming foreign investment. Second, outgoing. See, when Indian residents or Indian companies invest in other countries of the world, then this would be known as outgoing investment. For an example, that ONGC is an Indian company, it invests in Nepal. So here Indian company is investing in Nepal, then this would be known as outgoing foreign investment, right? Also, foreign investment is of two types, right? First is FDI and second FPI and FII, and we will discuss these terms in very comprehensive way in this lecture. See, foreign capital can flow in India or in our country through these routes or these sources. So the foreign capital which would come as a foreign investment, it can flow in our country via government source and via private. So what is government source? See, if Indian government take loan from any international institution or from a friendly country, then foreign कैपिटल जो है वो हमारे भारत में आएगी, या फिर हमारा जो है कोई भी फ्रेंड कंट्री है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हमको गिफ्ट देता है या फिर ग्रांट्स के माध्यम से। तो जो फॉरेन कैपिटल है वो गवर्नमेंट सोर्सेज के माध्यम से लोन के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में या ग्रांट्स के रूप में भारत में फ्लो होता है। वहीं जो प्राइवेट सोर्सेज हैं, तो प्राइवेट सोर्सेज में एफडीआई के माध्यम से, एफपीआई के माध्यम से, एफआईआई के माध्यम से जो फॉरेन कैपिटल है इट फ्लोज इन आवर कंट्री। तो अब इन सब में से जो एफडीआई आई है, राइट, एफडीआई, उसके बाद में एफपीआई और फिर एफआईआई, हम इन तीनों को वी विल स्टडी इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे. सो द फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश. And you need to understand the FDI is mentioned in our syllabus, therefore we need to every terms related to FDI. So we will understand FDI, foreign direct investment. See, the investment made by person or company of a country outside the domestic border of his country in another country, in which the first is investment made in the means of production. For an example, लैंड में हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको देखा था, राइट. फिर हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल गुड्स, राइट, और क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा. जैसे कोई नया इंजन लगाना है, फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट करनी है, या फिर कोई हैवी व्हीकल्स को परचेज करना है. सो हम सीधा कह सकते हैं कि व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन दिस वुड बी नोन एज एफडीआई. सेकेंड थिंग इज दैट द एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. क्योंकि सीधी सी बात है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, द
investment which is done in construction of a particular unit। जैसे वर्ल्ड की कोई कंपनी है, जैसे गूगल है, वो अगर भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करना चाहती है और उसके लिए अगर उसने एफडीआई किया, तो भाई जब तक ये प्रोडक्शन की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर क्या हुआ, निवेश हुआ। सो एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थर्ड थिंग इज दैट this is the investment through which the investor get more than 10% shares of a particular company. When he gets the shares more than 10%, then he also becomes entitled to direct participation, right, or voting rights on the board of directors of the कंपनी। तो वो एक तरीके से जब उसके पास में 10% से अधिक शेयर हो जाते हैं तो वो वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन जाता है, एंड ही वुड हैव वोटिंग राइट आल्सो, राइट। और उसके पास में कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर अगर कुछ भी डिसीजन लेना है देन डेफिनेटली he would have the rights. So in this way we can sum up this topic that FDI is an investment which is made in the means of production. It is a long term investment. Also through FDI the investor get more than 10% of the 10% more than 10% shares of a particular company, and also he becomes the member of the board of director, and he would be entitled to direct participation, or he would have the voting right, and this investment is known as foreign direct investment. अब जो foreign direct investment है, this is a major driving force of a economic growth. क्यों है? क्योंकि जैसे हमने मान लिया कि if we have a capital problem, अगर हमारे देश में एक तो जैसे हमारे देश में क्रेडिट नहीं है, राइट, इफ वी हैव लो क्रेडिट फ्लो, या फिर हम ये कहें कि जो मनी सप्लाई है वो कम है, इस केस में अगर एफडीआई आता है तो वी वुड हैव अ फ्रेश कैपिटल, और उस कैपिटल से जो है नए जो है फैक्ट्रीज या तो नई कंपनी इस्टेब्लिश हो सकती है, या फिर किसी कंपनी जो कंपनी है उसकी कोई यूनिट जो है इस्टेब्लिश हो सकती है। इन द बोथ द केसेस यहाँ पर जब कंपनी इस्टेब्लिश होगी तो इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और उससे हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और अधिक हो जाएगी। इसीलिए जो है FDI is a major driving force for economic growth, और also FDI is a important source of non-credit for economic development in India, right। ये यहाँ पर non debt है, right। जैसे अगर if we require credit then we can take loan from IMF, वर्ल्ड बैंक एंड आर फॉर फ्रेंडली कंट्री, परंतु जब हम लोन लेते तो उसको वापस देना पड़ता है। और यहाँ पर जो है FDI इज आल्सो सोर्स ऑफ नॉन डेट कैपिटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये भी दो प्रकार का होता है, लेकिन किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सो प्रोडक्शन एफिशिएंसी के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज ग्रीनफील्ड एफडीआई एंड सेकंड इज ब्राउनफील्ड एफडीआई। सीधा सा मतलब है कि जब कोई नई कंपनी में एफडीआई किया जाता है, या अगर एफडीआई से कोई कंपनी एस्टेब्लिश होती है तो ग्रीनफील्ड होगा, और कोई अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसमें अगर एफडीआई होगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्राउनफील्ड कहलाएगा। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो जो ग्रीन फील्ड होता है वो एक तरीके से वर्जिन प्रोजेक्ट होता है उसमें किया जाता है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांड्स एंड मॉडर्नाइजेस। तो कुल मिलाकर बिकॉज ऑफ द ग्रीन फील्ड एफडीआई या तो जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी? एक्सपेंड होगी। जैसे अगर कोई यूनिट है,
राइट। एफडीआई से हो सकता है कि किसी कंपनी है, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर एप्पल, राइट। एप्पल ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगाया, तो उससे इसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपांड होगी। या फिर जैसे हमने कहा कि एप्पल का जो बेंगलुरु में है, राइट, या जो भी जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें इसने न्यू टेक्नोलॉजी को क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजी को यहां पर दिया। तो एक तरीके से बिकॉज ऑफ द एफडीआई इन ग्रीनफील्ड या तो जो है कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्नाइजेज हो जाएगी, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि दिस greenfield investment is done at the time of establishment of a particular company। तो जब किसी भी कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है या कोई भी यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश होती है, उस समय पर ग्रीनफील्ड किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर आपको पता है कि when the new company or unit of a company would be established, then definitely there would be demand, देयर जो है जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट गिव्स प्रायोरिटी इन इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। सेकेंड थिंग इज दैट ब्राउनफील्ड, राइट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब सीधा सा मैंने बताया था कि जो ब्राउनफील्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे केवल और केवल, right, this may change the ownership of the shares of the host company but does not expand or modernizes the production of the capacity, right। for an example, जैसे हम उसी एप्पल के लेते हैं, जैसे एप्पल की एक प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर है, इंडिया में है। अब हो सकता है कि सैमसंग यहाँ पर एफडीआई के माध्यम से या तो ये जो इंडिया में जो प्रोडक्शन यूनिट है इसको एक्वायर कर ले, राइट, या इसके जो है शेयर्स खरीद ले। तो इस केसेस में यहाँ पर एफडीआई तो आया, लेकिन ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में था। तो इस वजह से, राइट, इट डज नॉट एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो टेक्नोलॉजी है उसको ये मॉडर्नाइजेज नहीं करता है। तो ब्राउन फील्ड जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में होता है। Therefore, there is no expansion in the production or there is no modernization in the machinery, right? Or it is done in the running or ongoing projects। और यहाँ पर इसको भी जो है encourage the foreign investment, उसके लिए भी इसको यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। प्रायोरिटी दी जाती है ग्रीनफील्ड एफडीआई को, और इसके साथ में ब्राउन फील्ड को भी क्या किया जाता है, इंकरेज किया जाता है। अब जो एफडीआई आता है भारत में, ये 2 रूट के माध्यम से आता है। सो ये क्वेश्चन भी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई विच रूट द एफडीआई एंटर्स इन इंडिया। सो देयर आर 2 रूट्स, द फर्स्ट इज दिल्ली रूट एंड सेकेंड इज मुंबई रूट, राइट। अब यहाँ पर ये जो दिल्ली रूट होता है इसको ही गवर्नमेंट रूट भी बोला जाता है, राइट, और जो मुंबई रूट है इट इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक रूट, राइट। अब इन दोनों को ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज अ कैपिटल इन दिल्ली, देयरफॉर, और जो गवर्नमेंट की कैपिटल है वो कहाँ पर है, दिल्ली है, तो यहाँ पर इसलिए इसको दिल्ली रूट बोला जाता है। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई इज इन मुंबई, इसीलिए अगर ऑटोमेटिक जो रूट है उसके माध्यम से आता है तो उसको मुंबई रूट बोला जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, सी व्हेन एफडीआई कम्स थ्रू द गवर्नमेंट रूट, देन एट फर्स्ट द इन्वेस्टर हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हेन गवर्नमेंट अलाउस इट और गवर्नमेंट परमिट्स इट, देन जो है वो एफडीआई जो है गवर्नमेंट रूट से आ सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रूट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रेस्ट्रिक्ट रूट, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहले गवर्नमेंट का अनुमोदन, या द इन्वेस्टर हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज नोन एज द रेस्ट्रिक्टेड
रूट। और यहाँ पर जो बॉडी इसके लिए कार्य करती है वो कौन सी है? इट इज़ मैनेज्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अलाउस और गवर्नमेंट परमिशंस थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और आफ्टर द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट दिस जो एफडीआई है ये भारत में आ सकता है, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड रूट भी बोला जाता है। अब दूसरा है मुंबई रेट। मुंबई रेट में मतलब ये है कि यहाँ पर विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड विदाउट द परमिशन ऑफ द आरबीआई ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये एफडीआई है, ये भारत में आ सकता है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज लिबरलाइज्ड रूट, राइट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लिबरलाइज्ड रूट कहते हैं। और भारत में लगभग 90 से ऊपर जो एफडीआई है वो किस रूट से आता है? मुंबई रूट से आता है। अब इफ यू हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई इज द दिल्ली रूट, देखिए यहाँ पर दिल्ली रूट का इंपॉर्टेंस ये है कि व्हेनेवर वी हैव टू प्रोटेक्ट आर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जैसे अगर हमको किसी सेक्टर को प्रोटेक्ट करना है तो हम एफडीआई के लिए एक तरीके से हम पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमको किसी भी सेक्टर को इफ वी हैव टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन सेक्टर, फॉर एन एग्जांपल जैसे ही व्हेन द लॉकडाउन्स वर इम्पोज्ड इन द कोरोना पेंडेमिक, एट दैट टाइम चाइनीज इन्वेस्टर ट्राई टू परचेज द शेयर्स ऑफ इंडियन प्राइवेट बैंक्स। और इस वजह से कहने का मतलब ये है कि चाइना वाज एंटरिंग इन आवर बैंकिंग सिस्टम थ्रू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन आवर प्राइवेट बैंक्स, और ये जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो जितने भी चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली देन दे वुड बी एबल टू परचेज द शेयर्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बैंकिंग सेक्टर है उसको क्या किया? प्रोटेक्ट किया। या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट कंपनीज होती हैं या स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का कोई सेक्टर है उसमें भी अगर हमें फॉरेन कैपिटल को रोकना है देन गवर्नमेंट कैन यूज द दिल्ली रूट। तो ये है यहाँ पर जो मुंबई रूट है, देयर इज नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई रिक्वायर्ड, बट यहाँ पर इसको मैनेज कौन करता है? इसको आरबीआई मैनेज करता है, राइट। इसीलिए इसको मुंबई रूट या ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। और यहाँ पर here the investor has to take the permission of the government, therefore it is known as the government route or Delhi route, right? Now we will understand government measures to increase FDI, right? क्योंकि when the FDI will come to India, then definitely there would be a positive impact in our economy. Therefore government took many initiatives and many measures to increase the FDI. So we will see government measures and initiatives to increase the FDI. The first thing is that in 2019 the government allowed 100% FDI in coal mining activity through automatic route, which means that the company or a person whoever want to invest in coal mining projects, then without the permission of RBI and government he can invest 100% projects in the coal mining. So there is a 100% FDI limit through automatic route in coal mining sector. Second, 26% is FDI allowed in digital sector. यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डिजिटल सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहती है, therefore government allowed 26%, then 100% FDI allowed in the manufacturing sector through the automatic route, और इससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बूम आएगी। फिर फोर्थ जो है डेवलपमेंट ऑफ द FIFP पोर्टल। FIFP क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन पोर्टल हो जाएगा। द investor who takes the permission from the central government, for him the FIFP provide the single window facility
फॉर द एप्लीकेंट हु टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ से उसे सिंगल विंडो फैसिलिटी मिल जाएगी, देन डेफिनेटली इट वुड बी इजी फॉर हिम टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। इसके साथ ही एफडीआई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड व्हाट इज द पीएलआई स्कीम? वी हैव स्टडीड इन द लेक्चर 5th द चैलेंजेस एंड द करंट ट्रेंड्स एंड द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन, तो इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने पीएलआई स्कीम को बहुत अच्छे से पढ़ा था, राइट। तो इन सब जो मेजर्स हैं इनकी वजह से यहाँ पर जितनी ज़्यादा लिमिट बढ़ेगी, डेफिनेटली जितनी ज़्यादा लिमिट बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो है एफडीआई भारत में आएगा। सो दीज वर द इनिशिएटिव्स विच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एफडीआई। Here we will know about the FIPV because a 3-marker question can be asked regarding this topic. So FIPV is a government institution, right? And as I already told you, the investor who takes permission from the central government for the FDI, the FIPV provides single window clearance to FDI. It was established in 1991, but since 2003, it is working under Ministry of the Foreign Finance, right? Ministry of Finance since 2003। और जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये इसके इंचार्ज चेयरमैन होते हैं। Now we will know where is the permission for FDI and where is नो परमिशन। तो एग्जाम्स में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए कि विच सेक्टर आर ओपन फॉर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट एंड विच परमिशन आर नॉट अलाउड फॉर द एफडीआई परमिशन। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि किस सेक्टर में एफडीआई के लिए परमिशन है तो वो क्यों है, और अगर किसी सेक्टर में एफडीआई की परमिशन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि दीज सेक्टर्स आर नॉट अलाउड फॉर द एफडीआई इन्वेस्टमेंट। वाई बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट, बिकॉज दीज सेक्टर आर स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, राइट। जैसे हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी, सो इट इज अ स्ट्रेटजिक, it has strategic importance, therefore we do not want to any foreign जो है पार्टिसिपेशन, इसीलिए यहाँ पर जो है परमिशन नहीं है। तो एक तो क्या हो सकता है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, रणनीतिक महत्व। दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे देश में जो है मोरालिटी या फिर जो है सिटीजन मोरालिटी को क्या बनाना चाहती है। जैसे अगर लॉटरी है, अगर उसमें एफडीआई को अनुमान हमने इफ़ बी अलाउड, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि इससे लॉटरी जो है हमारे देश में और ज़्यादा बढ़ेगा और उससे हमारा जो सोशल हार्मोनी है हो सकता है वो भी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो दीज आर द रीज़न बिकॉज ऑफ स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस, citizen morality, right, social harmony, government does not allow the FDI in these sectors. Here are nuclear energy, right, rail transport, lottery business, the real estate business, then betting market, tobacco product, transferable development rights businesses। तो ये इतने जो हो जाएंगे। फिर दूसरा है कि किस किस में जो है गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। सीधी सी बात है कि if we want to improve our economy then definitely we require a huge amount of foreign investment, therefore government ने जो है कई सेक्टर्स को 100% ऑटोमेटिक जो है एफडीआई परमिटेड भी कर दिया है। तो कुछ क्षेत्रों में ये 59% है। तो हो सकता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, therefore we need to understand the 100% एफडीआई with automatic route। तो 100% FDI with automatic route, first is agriculture and animal husbandry, right, agriculture and animal husbandry। second is white label ATM। अब जो white label ATM है
उसको मैंने फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स में अच्छे से पढ़ाया था। तीसरा इंडस्ट्रियल पार्क मेडिकल इक्विपमेंट, तो इसमें गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो है 100% मतलब वाइट लेवल एटीएम, इंडस्ट्रियल पार्क जो है मेडिकल इक्विपमेंट और एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री में 100% एफडीआई परमिटेड किया है। सेकेंड, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना है 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, पेंशन में 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट, एफएम रेडियो में 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट और डिफेंस सेक्टर में 74%। राइट। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है टॉपिक वो हम पढ़ेंगे, वो है बेनिफिट्स ऑफ द एफडीआई इन इंडिया या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन कैपिटल। सी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम यहाँ पर इन आवर सिलेबस द टॉपिक रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इज मेंशन्ड इन आवर टॉपिक। तो अब आप ये समझिए कि फॉरेन कैपिटल जो है वो किस माध्यम से आ सकती है। तो हमने देखा है कि जो फॉरेन कैपिटल है वो लोन के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, ग्रांट के माध्यम से हमारे देश में फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर लोन है देन डेफिनेटली हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा, वी हैव टू रिटर्न इट। तो इसका उतना ज़्यादा महत्व हमारे जो है इकोनॉमी में नहीं होता है। वहीं अगर हम यहाँ पर इफ बी टॉक अबाउट द एफपीआई एंड एफआईआई, ये दो जो हैं हमारी इकोनॉमी के लिए नो डाउट हमारे लिए ये भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं, लेकिन एफआईआई जो है ये हो सकता है कि हमारे अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो फॉरेन कैपिटल आता है वो एफडीआई के माध्यम से हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, या फिर किसी से आएगा, रेमिटेंस से भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी हैव टू राइट आंसर ऑन द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल देन डेफिनेटली वी कैन आंसर दैट द रोल ऑफ एफडीआई इन आवर इकोनॉमी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जो रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल है, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन कैपिटल, या फिर हम ये कहें कि बेनिफिट्स ऑफ द एफडीआई इन इंडिया, बात क्या है, लगभग एक समान है। तो थ्रू दीज पॉइंट्स we will understand what are the benefits of the foreign direct investment, or we will also understand the importance of the foreign capital through these points. The first thing is that because of the FDI a new unit or new company is established and because of this production increases। भाई सीधी सी बात है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उससे जो हमारे पास में सरप्लस होगा वी कैन एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्रीजेस, और जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो आर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जो BOP है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे फेवर में होगा। राइट। तो पहली चीज़ तो यही है कि बिकॉज ऑफ FDI जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, CAD रिड्यूस होगा, BAP फेवरेबल होगा विच इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि व्हेन द न्यू यूनिट और अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड देन इट वुड क्रिएट अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, राइट, एम्प्लॉयमेंट भी। अब यहाँ पर एज यू नो दैट व्हेन एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इट विल लीड्स टू द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फिर हमारे देश में मैनी फैक्ट्रीज वुड बी एस्टेब्लिश्ड, और उस वजह से हमारी जो है अर्थव्यवस्था उसमें ग्रोथ होगी। राइट। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट हम ये समझते हैं यहाँ पर कि द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द कंट्री, क्योंकि जब FDI आएगा तो हो सकता है कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भाई नई कंपनी भी लेके आए। जैसे हमने कहा कि अगर एप्पल हमारे मध्य प्रदेश में एक यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहती है,
तो उसके लिए वो नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और there would be the entrance of or arrival of the modern technology in our economy or in our country. The third thing is that जो है increasing foreign exchange reserve। भाई जब यहाँ पर हमारे देश में FDI का है, तो FDI हमेशा जो है लॉन्ग टर्म के लिए आता है, उससे हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड एज यू नो वेरी वेल दैट इफ वी हैव इनफ और ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, देन डेफिनेटली वी कैन इम्पोर्ट वाट एवर वी रिक्वायर। फॉर एन एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, या फिर हमको कोई मिसाल या कोई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है, परचेज करना है, देन डेफिनेटली जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल हेल्प अस, राइट। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन इज इनकरेज्ड। सीधी सी बात है, जैसे हम कहें कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा सो वी डोंट हैव इनफ क्रेडिट टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू स्टेब्लिश अ पर्टिकुलर कंपनी। उस समय पे यहाँ पर जो FDI है वो नई कंपनियों को स्टेब्लिश करेगा, राइट, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, राइट, और कुल मिलाकर इस वजह से हमारे देश में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगा, राइट। इसके साथ ही जब FDI होगा तो जो फॉरेन कंपनी है दे विल टेक देयर मैनेजमेंट, देयर टेक्नोलॉजी, also they will apply this management in our country also। तो उससे हमारे देश में जो है मैनेजमेंट स्टाइल है ये भी क्या होगी, डेवलप होगी, और स्पिल ओवर जो इफेक्ट है उसके माध्यम से हमारे देश में भी जो है बेटर मैनेजमेंट है ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इफ वी हैव अ obsolete or conventional technology, then definitely we would be unable to produce good quality of goods and services. But if we have modern technology, modern technology, then definitely we would be able to produce good quality services. Also we would be able to produce diversified goods and services। और इसके साथ ही यहाँ पर जो FDI के माध्यम से जो MNCs आएंगी वो हमारे देश में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। आल्सो थ्रू FDI जो MNCs फैक्ट्री या MNCs जो यूनिट हमारे देश में लगाएंगी उससे क्या होगा कि जो इंडिजीनियस है उनकी भी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। स्पिल ओवर इफेक्ट इसी को कहा जाता है। देखिए बिकॉज ऑफ द FDI जो है MNCs वुड एस्टेब्लिश देयर प्रोडक्शन यूनिट और एनी ऑफिस इन आवर कंट्री। अब MNCs जो है वो उनके पास में दे हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट, दे हैव बेटर मैनेजमेंट, therefore they would be able to produce the goods and services at low cost, right। अब एक तरफ तो MNC are performing in our country, अगर हमारी जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं if they have to compete with MNCs then definitely our domestic industry would also modernize the technology, right। Our domestic industry would also improve the management and therefore they would increase their efficiency। तो ओवरऑल उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, राइट। और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो मॉडर्नाइज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि स्पिल ओवर इफेक्ट से वेदर, मतलब ये है कि डायरेक्टली FDI से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है मॉडर्नाइज भी हो जाएगी। आल्सो बिकॉज ऑफ FDI कैपिटल फ्लो जो है हमारे देश में बढ़ेगा, और कैपिटल फ्लो अगर आसान रहेगा तो देयर वुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिटेल लोन, तो उससे लोन भी बढ़ेगा और नई इंडस्ट्रीज भी जो है एस्टेब्लिश होगी। Also it increases the employment by through the FDI when new industries would be established
एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनडायरेक्टली जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है या जो पॉवर्टी प्रॉब्लम है दैट वुड बी आल्सो सॉल्व्ड, राइट। सो दीज वर द positive effect of FDI in our country, or these were the importance of the foreign capital in our country. But there is a possibility of losses also, right। हम यहाँ पर पॉसिबल वर्ड को इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि FDI, राइट, अगर हम देखें तो जनरली देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ FDI इन आवर कंट्री, और 90% में FDI जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, बट देयर आर चांसेस आल्सो फॉर द लॉसेस। सो वी विल सी FDI द पॉसिबल लॉसेस, और देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ FDI इन आवर कंट्री। तो कुछ है हम देखेंगे। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि FDI से जो है हमारे देश में क्या आएंगे, यहाँ पर MNCs आएंगी, और द MNCs विल हैव टेक मोनोपोली, राइट। उनके पास में इफ दे हैव टेक मोनोपोली, सो डेफिनेटली जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो आउट ऑफ क्या हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगी। तो जो MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाएंगी, दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी, दे हैव बेटर मैन पावर, दे हैव बेटर रिसोर्सेज, और जब वो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे तो उनसे हमारी जो डोमेस्टिक स्मॉल कंपनीज हैं वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट आवर डोमेस्टिक कंपनीज वुड बी अफेक्टेड वेरी बैडली, और हो सकता है इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। दूसरा जो है लग्जरी बढ़ेगी हमारी सोसाइटी में, भाई जो MNCs हैं वो लग्जरी आइटम्स को प्रोड्यूस करती हैं और प्रमोट करती हैं, और हमारा जो देश है इसमें मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, सो डेफिनेटली दे वुड बी अफेक्टेड। तीसरा हो जाएगा द प्रोडक्शन ऑफ जो मॉडर्न गुड्स हैं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे जो हमारी डोमेस्टिक आइटम्स हैं, डोमेस्टिक आइटम्स एंड सर्विसेज हैं, दैट वुड अफेक्ट, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो है पोटेंशियल एरियाज, भाई जिन क्षेत्रों में FDI की परमिशन होती है उनको एक तरीके से उनके या उन पर जो है हम डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज compete अनफेयरली। कई बार जो है कि जो MNCs होते हैं दे हैव मोनोपोली, देयरफॉर वो कई बार जो है अनफेवरेबल या जो होती है अनएथिकल जो एक्टिविटीज़ उनमें भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड किसी दूसरे वर्जन के जो प्रोडक्ट होते हैं, या गूगल जो है वो एंड्रॉयड के अलावा जो जितने भी वर्जन्स होते हैं उन ऐप्स को, या गूगल के अलावा जो ऐप्स होते हैं उनको प्रमोट नहीं करता है। तो इस वजह से भी जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रभावित होती हैं, और जो वेस्टर्न गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हमारे देश में क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं। Now we will study foreign portfolio investment, which is FPI. What is FPI? See, when a foreign investor buys less than 10% shares of a particular company, then this is known as FPI, foreign portfolio investment. राइट अब इसके जो है फीचर्स को हम देखेंगे। सबसे पहला तो ये कि दिस इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू द स्टॉक मार्केट, इसीलिए यहाँ पर जो है सेबी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि इन दिस इन्वेस्टमेंट द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द कंपनीज शेयर, राइट, और पोर्टफोलियो फॉर हिज ओन बेनिफिट, और इसी वजह से कई बार जो है जो इन्वेस्टर होते हैं वो बड़े अमाउंट में कंपनियों के या कई कंपनियों के जो हैं शेयर्स को खरीदते हैं। सो इन दिस इन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज परचेस्ड, राइट। अब यहाँ पर जो है शेयर खरीदने से केवल और केवल जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफ़र होती है। न्यू जो है न्यू कंपनी और न्यू यूनिट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, देयरफॉर इट इज लेस प्रॉफिटेबल देन FDI, राइट। इसके साथ ही हमको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि द इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन द इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है
he is interested in the increase and decrease the value of shares, he has nothing to, उसको जो है प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट एवं लॉस है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो है कंपनी की जो है वर्किंग है या कंपनी की टेक्नोलॉजी है उसमें अपेक्षाकृत जो है कम जो है इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सी, व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट थ्रू द स्टॉक मार्केट बट इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन सेबी, राइट, ही इज नॉट रजिस्टर्ड इन द शेयर मार्केट, और तो यहाँ पर क्या होगा कि सेबी की जो है रेगुलेशन है उससे बचने के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टर है फिर वो क्या करेगा कि जो अदर इंस्टीट्यूशन है उनकी मदद से जब इन्वेस्ट करेगा तो उसे ही क्या कहा जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो हम सीधा कह सकते हैं कि द इन्वेस्टर हु वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया बट आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी और इन आर share market, then this investor invest money through some institutions and this is known as the foreign institutional investment। इसके जो फीचर्स हैं वो देखते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लगभग जो है 1 साल से कम का होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इज डन डायरेक्टली बट थ्रू शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, राइट। अब यहाँ पर जो है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इंस्टीट्यूशन की हेल्प से किया जाता है और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करते हैं? पी नोट्स आर गिवन टू इन्वेस्टर, राइट। इसीलिए यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे समझिए अगर हमारे देश में ये जो है ब्लैक मनी है, राइट, ब्लैक मनी, हो सकता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है दे हैव अ ह्यूज ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी को इफ दे विल इन्वेस्ट, दे विल परचेज इन द शेयर्स ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली, देन सेबी वहाँ पर रेगुलेट करती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि पी नोट्स के माध्यम से पी नोट्स को परचेज करते हैं। अब जो है पी नोट्स की जो जानकारी है, इन्वेस्टर की जो जानकारी है वो इंस्टीट्यूशन के पास होती है। इसीलिए जो ब्लैक मनी है वो क्या होती है कि FII इन्वेस्टमेंट में कई बार ब्लैक मनी भी जो है इन्वेस्ट की जाती है, राइट। या हो सकता है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था से जो है पी नोट्स खरीद सकता है, देन थ्रू दी पी नोट्स ही कैन इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी, राइट। तो ये इसका एक क्या है? वीकनेस है, या एक तरीके से ये इस तरीके से हमारी इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। और इसके साथ ही इसकी जो सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो ये है कि चूंकि यहाँ पर ओवरनाइट बेसिस पर जो है शेयर्स खरीदे या बेचे जा सकते हैं, देयरफॉर व्हेनेवर गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन, कभी भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है, तो एकदम से ये जो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं दे पुल आउट देयर मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट, और इसकी वजह से कई बार हमारे शेयर मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द FII, foreign institutional investment. Now the next topic is multinational companies, which is mentioned in our syllabus, therefore we need to understand this topic very carefully. So multinational companies, which are also known as transnational companies or transnational corporations. So at first we will understand which company is known as multinational company. See, understand here, the company that controls the production of goods and services more than one country, that company known as the multinational company. तो सीधा अगर कोई कंपनी जो है प्रोडक्शन को एक से अधिक देश में अगर कंट्रोल कर रही है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी होगी। या फिर उसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि कंपनीज होज बिजनेस एक्टिविटीज, फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन यूनिट, राइट, सेलिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, राइट,
etc. So companies whose business activities are conducted through foreign direct investment in more than one country, this company would be also known as multinational companies. या हम तीसरी डेफिनेशन भी ये देख सकते हैं कि कंपनी दैट हैव नेट सेल्स ऑफ मोर देन 100 मिलियन, इतनी अगर उसकी क्या है सेल्स है. Also it get investment in manufacturing which typically accounts for more than 15 to 25 जो है कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है. और इस तरीके से वो कई देशों में जो है इकोनॉमिक या बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करती है, तो उसे ही मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है. तो सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है कि कंपनीज होज इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट in more than one country is known as multinational companies. For an example here, Tata Group, LG Electronics, Apple Inc., Airbus, Dell, Nestle, PepsiCo, VMC, Microsoft, Samsung, Wipro, Google, Intel, Honda, Sony, right? तो जितनी भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वी आर यूजिंग, राइट, चाहे वो शूज़ हो या मोबाइल हो, लैपटॉप हो, राइट, या फूड आइटम्स हो, तो उन सब में आपको कई एमएनसीज देखने को मिल जाएंगी. हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए कि राइट डाउन द एमएनसीज ऑफ द फेमस एमएनसीज, तो यहाँ पर ये सभी हैं. इनको हम जो है कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे टाटा ग्रुप हो जाएगा, राइट, देन BMW हो जाएगा, देन होंडा हो जाएगा, ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, राइट. वैसे ही सैमसंग है, सैमसंग हो जाएगा, राइट, सैमसंग हो जाएगा, फिर एप्पल हो जाएगा, नोकिया हो जाएगा. ये सभी मोबाइल कंपनी से रिलेटेड क्या है एमएनसीज हैं. तो ये हमने वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशंस. नाउ वी विल स्टडी द फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएनसीज, राइट. सो वी विल अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ द एमएनसीज. पहला ये है कि they have multinational activities, right. So पहली फीचर तो क्या होती है, they have multinational activities, which means that MNCs perform their business activities or economic activities in more than one country, right. Second thing is that they have huge size और MNCs has huge MCAP. इसका मतलब उनका प्रोडक्शन, उनकी सेलिंग या ओवरऑल उनका जो टर्नओवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. सो विच मीन्स दैट दे हैज़ ह्यूज साइज, ह्यूज टर्नओवर, ह्यूज एमकेप, विच मीन्स दैट देयर कैपिटल एंड सेल्स शुड बी इन बिलियंस या उनके बिलियंस में होते हैं. तीसरा, एमएनसीज ट्रांसफर रिसोर्सेस, राइट, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. सो द एमएनसीज ट्रांसफर द रिसोर्सेज, जो उनकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं या ब्रांचेज होते हैं, उनमें ये रिसोर्सेज को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं. फॉर एन एग्जांपल, जो टेक्निकल असिस्टेंस है या स्टाफ है या गुड्स, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल और रेडीमेड, राइट, ये जो मैनेजमेंट है ये ट्रांसफ़र अपनी सब्सिडरी कंपनीज में या किस में, ब्रांचेस में किया जाता है. और जब एमएनसीज अपनी ब्रांचेस में टेक्नोलॉजी को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है. आल्सो दे हैव मल्टीनेशनल विंग्स ओनरशिप. जो एमएनसीज होती हैं उनका एमकेप इतना बड़ा होता है कि उनके लाखों की संख्या में शेयर्स होते हैं और जो शेयर्स होते हैं वो कई देशों के कई नागरिकों के द्वारा होते हैं. तो द कैपिटल ऑफ कंट्री वुड हैव बीन शेयर्ड बाय मैनी नेशंस एंड बाय मैनी सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि एमएनसीज अफेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि उनका जो है प्रोडक्शन है, उनकी सेलिंग है, पैकेजिंग है, all the economic activities happens in different countries and they have huge potential in world economy, therefore they affect the world economy. Also there are factories and offices in different countries, परंतु उनका जो हेड होता है
वो किसी एक सेंट्रल कंट्री में होता है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनका कमांड होता है वो कैसा होता है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल। देयर इज अ यूनिटी ऑफ कंट्रोल और यूनिटी ऑफ कमांड विच इज अ फीचर ऑफ एमएनसी। जैसे एप्पल है, अब उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जितनी भी जो उसकी यूनिट्स हैं वहाँ पर हेडक्वार्टर से जो भी डिसीजन लिए जाएंगे दैट वुड बी अप्लाइड इन द अदर फैक्ट्रीज और यूनिट्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही वो जिस देश में काम करती हैं वहाँ पर हमेशा एक्विजिशन के माध्यम से, राइट, थ्रू फ्रीक्वेंट मर्जर्स और थ्रू एक्विजिशंस, राइट, दे जो कंपनी है वो अपनी इकोनॉमिक पावर को और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को होस्ट कंट्रीज में क्या करती हैं, हमेशा इंप्रूव करती जाती हैं, राइट। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द MNCs. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे राइट डाउन द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ MNCs, द प्रेजेंस ऑफ, राइट डाउन द importance of presence of multinational companies in our economy, या ये पूछा जा सकता है कि what is the benefits of having multinational companies in our countries, या फिर ये पूछा जा सकता है कि how multinational companies play an important role in the growth of our economy. So these type of question can be asked in the examination. So we will understand this topic very comprehensively, which is multinational companies importance and benefit. पहला तो क्या हो जाएगा, the replacement of the technology, right? हमारे देश में जो जितनी भी कंपनियां होती हैं they have conventional and old, so old and obsolete technology in found in our economy और किसी भी इकोनॉमी में, परंतु जो MNCs होती हैं वो क्या करती हैं कि न्यू एंड बेटर जो है टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस कर देती हैं। जैसे हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कोई भी यूनिट है, परंतु जब सैमसंग है या नोकिया है अगर वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगी दैन डेफिनेटली दे वुड रिप्लेस द ओल्ड एंड ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी विद न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी। सेकेंड थिंग इज दैट employment generation, then MNCs establish their unit or their factory in a particular company, तो उससे क्या होगा, जो है employment क्या होता है, generate होता है, और employment generate होगा तो डेफिनेटली हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, राइट, और उससे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी बढ़ेगी। आल्सो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कम होगा, राइट। तीसरी चीज यहाँ पर हो जाएगी proper use of resources. See, if we don't have a modern technology or enough resources to extract the maximum value of resources, then जो MNCs हैं वो न्यू और बेटर टेक्नोलॉजी को लेकर आती हैं। Therefore ये हमारे देश की जो जितना भी मटेरियल रिसोर्सेज है एवं जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको भी क्या करती हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हैं। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, आल्सो इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज द MNCs प्रोड्यूसेस गुड means good quality goods and services, therefore they increase the standard of living. Next is possibility of compatibility in the market, right? यहाँ पर ये जो MNCs होती हैं if they have a surplus production then definitely they gives impetus to the export promotion, एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं और उससे क्या होता है कि उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारे फेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट एज जो है MNCs जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में कई बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, कई बिजनेस एक्टिविटीज़ करती हैं। देयरफॉर दे हैव अ डिफरेंट मैन पावर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़, उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, ये जो मैन पावर होती है वो अलग अलग देशों की होती है और यहाँ पर ये जो कंपनी है अलग अलग देशों में काम भी करती हैं। तो ये अपना
प्रॉफिट बनाए रखने के लिए भी कई बार क्या है हेल्दी रिलेशन लगती है, जिससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ब्रदरहुड जो है वो भावना वो क्या होती है डेवलप होती है, और जो कल्चरल क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, राइट। तो एक तरीके से प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। फिर यहाँ पर जो है एमएनसीज जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी क्या करती हैं बूस्ट देती हैं। भाई एमएनसीज जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी, तो डेफिनेटली इससे हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा और कैपिटल फॉर्मेशन को भी इम्प्रूव मिलेगा। आल्सो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो एमएनसीज होती हैं दे फोकस ऑन रिसर्च, राइट। और रिसर्च जब होती है तो उससे न्यू जो है टेक्नोलॉजी उसको बढ़ावा मिलता है, उससे डेवलपमेंट आता है, राइट। और उससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी क्या होती है इम्प्रूव होती है, राइट। और क्वालिटी जो है वो भी क्या होती है इम्प्रूव होती है। तो कुल मिलाकर एमएनसीज फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, एंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो भी क्या होती है डेवलप होती है, राइट। इसके साथ ही इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो एमएनसीज होती हैं वो रॉ मटेरियल को बल्क में खरीदती हैं, राइट, बल्क में खरीदती हैं। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी, राइट, जो है रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉय बेस पर रखते हैं, तो उससे जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो है कॉस्ट क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, राइट। इसके साथ ही ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन जो मार्केट होते हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को भी प्रमोशन मिलता है, राइट। तो ये थे एमएनसीज के क्या थे फायदे थे, राइट। अब हम यहाँ पर एमएनसीज के जो हैं वीकनेस या शॉर्टकमिंग्स भी देखेंगे, या हो सकता है एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाए कि हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ एमएनसीज इन आवर कंट्री इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, राइट। या फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउ द एमएनसीज हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, या कुल मिलाकर मल्टीनेशनल कंपनीज की जो वीकनेसेस हैं या जो नेगेटिव इफेक्ट है या जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको हम इन बिंदुओं से समझते हैं। द फर्स्ट इज थिंग इज दैट द एमएनसीज हैज टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली, देयरफॉर जो हमारी कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर अनेबल टू compete with the MNCs। भाई जो हमारी स्मॉल कोटेज इंडस्ट्रीज होती हैं दे हैव ओल्ड इन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी बट MNCs हैव अ मॉडर्न एंड न्यू टेक्नोलॉजी, और उनके पास में जो है बल्क में प्रोडक्शंस भी होता है। इसीलिए जो MNCs हैं वो लो कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती हैं, और हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं दे आर लेबर इंटेंसिव आल्सो, देयरफॉर वो लो कॉस्ट पर प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वो कंपटीशन से क्या होती हैं बाहर हो जाती हैं, राइट। इसके साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो धीरे धीरे करके जो है इकोनॉमिक पावर को भी एक्वायर करती हैं, अर्थात मोनोपोली जो है क्रिएट कर देती हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एमएनसीज सेंड्स रेमिटेंसेस आउटसाइड द कंट्री, और ये तो आपने कई बार व्हाट्सएप के मैसेज पे भी पढ़ा होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में कमाई करती हैं और पूरा का पूरा पैसा भारत से बाहर ले जाती हैं। इट मीन्स दैट जो हमारे देश का जो कैपिटल है वो वाकई में अगर फॉरेन कंट्रीज में पला जाएगा तो इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री आल्सो, राइट। तीसरा जो एमएनसीज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है केवल और केवल मैक्सिमाइज द वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट, राइट। सो MNCs want to generate huge profit worldwide, therefore they focus on the profit, और उनका कभी भी जो किसी पुअर कंट्री को डेवलप करने का उद्देश्य नहीं होता है, राइट। चौथी जो पॉइंट वो हम समझते हैं यहाँ पर दे हैव मोर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसकी वजह से वो मार्केट का एक ह्यूज पोर्शन जो है वो क्या कर लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं, और उस वजह से इकोनॉमिक
ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक जो है कंट्रोल अपने हाथ में भी ले लेते। क्लियरली ये है कि जब वो लो अमाउंट पर कई चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो धीरे धीरे दे वुड हैव मोनोपोली, एंड व्हेन दे विल गेट द मोनोपोली देन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस, पावर ऑफ प्रेजेंस, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, उसकी वजह से इकोनॉमिक जो है ऑटोनॉमी जो होना चाहिए कि भाई हमारे जो है हमारे देश में कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन होना है, कितना होना है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी नहीं है, या फिर जो इकोनॉमिक कंट्रोल है वो फिर इन एमएनसीज के हाथ में चला जाता है। वी जो है हम हमारी जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है या इकोनॉमिक कंट्रोल है उसको लूज कर देते हैं, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर जो एमएनसीज हैं दे में आल्सो एडवर्सली इफेक्ट द बीओपी ऑफ द कंट्री आल्सो, राइट। क्योंकि हो सकता है कि कई बार जो बीओपी है, बीओपी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स का ही नहीं होता, किसका होता है कि जो है पेमेंट, एक तो हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था और करंट अकाउंट में पढ़ा था। कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था कि अगर हमारे देश का क्रेडिट किसी दूसरे देश में जाता है तो उससे बीओपी क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। फॉर एन एग्जांपल टिल 1974 कोको कोला यूज्ड टू सेंड 6 करोड़ रुपीस पर एनम टू यूएसए, और यहाँ पर जो कोको कोला का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो केवल और केवल 1.6 लाख पर एनम था। तो इन्वेस्टमेंट केवल इतना, और यहाँ से जो जितना बेनिफिट था वो पूरा कहाँ पर चला गया, यूएसए चला गया। तो इस वजह से भी द एमएनसीज कैन एडवर्सली इफेक्ट द बीओपी, राइट। नेक्स्ट इज इट कैन हिंडर द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। कैसे? जैसे जो एमएनसीज होती हैं उनकी वजह से हमारी जो स्मॉल एंड जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको जो है कई बार उनको बंद भी करना पड़ता है, राइट। इस वजह से भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा एमएनसीज हैज अ वर्ल्ड वाइड एंड वाइड स्प्रेड पावर, राइट। और इस वजह से क्या होता है कि वो हमारे देश की सॉवरेनिटी पर क्या करती हैं कि ये बहुत हमारे सॉवरेनिटी के लिए अनफेवरेबल होता है। क्योंकि जैसे वर्तमान समय में द एमएनसीज लाइक ट्विटर है, गूगल है, फेसबुक है, दे आर मैनिपुलेटिंग आवर इलेक्शंस आल्सो। भाई हमारे देश के इलेक्शंस हैं या हमारे देश में नैरेटिव्स जो हैं वो कई बार फेक नैरेटिव्स इनके द्वारा जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। फेक नैरेटिव्स है या फेक न्यूज़ है या जो हमारे इलेक्शंस हैं वो इन एमएनसीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। इस वजह से हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, राइट, वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, राइट। नेक्स्ट इज ये इकोनॉमिक मॉडल को इस तरीके से, जो एक तरीके से ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे जो लग्जूरियस आइटम होते हैं वो प्रमोट होते हैं, राइट। और इसके साथ ही ये ऐसा मॉडल लेके आते हैं जिससे इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीजेस होती है, राइट। रिच रिच होता जाता है, पुअर पूरा होता जाता है। ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो है वो इनकी वजह से हो जाता है, राइट। तो ये यहाँ पर जो थे we have studied the weakness or the negative effect of the MNCs in our economy. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.